supposed to be done tomorrow, but due to sir's meeting, this meeting, and we are taking today. Okay. Smita ma'am is asking, how's the Josh? How is the Hi, Josh? sir. Hi, sir. Sab- Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Great. Hi, ma'am. Hello, Sonia ma'am. Josh Okay. with Josh. ग्रेट, यही अच्छा लगता है कि सब जोश में होते हैं. So today, without wasting any time, I'm going to start with Google Form. There are new additions, new features in Google Form. So I will start with Google Form. Okay. So let me come here. These are the checklist for your level 1. What are the things we are supposed to learn for level 1? It's creating Google Form, adding, editing different question types in Google Form, choose a response destination, edit form setting, send a Google Form to the user, view responses, using Google Forms for feedback, grading with Google Form quizzes, using Google Form to collect data, using Google Form as a grading rubric, embedded videos in Google Form. Uh, One more thing, I just want to congratulate everyone, those who have qualified level 1 and level 2 also. There are people who are there in level 2. So at the end of the session, I want those who have registered here must go for level 1 and get certified. So a big clap for everyone. So I'm directly moving towards Google Form, how to go with Google Form. So I'm presenting my entire screen now. Okay. So as you all Smita, know, yes, ma'am. Smita ma'am, I'm so sorry to interrupt you. I haven't been able to complete the fundamentals training, but I can do it even if this training ends. Can I Yes, do ma'am. that? Of course, ma'am. Of course, ma'am. There are 13 modules. If you complete Yes. that 13 modules seriously, okay, Yes. so you will be getting a complete help from that. Those who have appeared for level 1, they can tell you Yes. the 13 module is very important. There are quizzes also in that. You can go and retry it every time unless and until you succeed there, Okay. and that will be a revision for you, and that will be a great help for that. So Yes. it's better you complete that 13 module and then go for level 1. Okay. Okay. All those units that you have given from right from unit 1 to 1 to 13. 13. Okay. Yes, ma'am. Great. Thank you so much. Okay, ma'am. So we are going towards Google Form. So this is the 9 dots waffle here. When we click here, we find Google Form here. So there are already templates given there, as I told you in the doc also. See, you can see the template gallery here. When you open that gallery, you will find different types of templates here, ready-made templates, which you can use. If you want to make an order form, if you want to go for job application, time of request, work request, event feedback, customer feedback, event registration, then your party invite, then find the time, contact information. These was all personal, course evaluation, worksheets, assessment, exit ticket, and blank quiz. So we are not using template because I have to explain you each and every feature. So I'm going with blank form. Okay. So this is the blank form here. And here you can see the tools which we are going to use for creating questions. This side. Many of you know that also. So first thing, we are going to change the header of this form.
So right now we are using header of our schools, which is already defined, and that header only we are using as a Google form header. Everybody in all 4 schools, we have the same thing. We are using header in the Google form. So we will go with customize theme. So when we click here, we will find here header. So from here, you can choose the image of that header. If you have that picture on your system, you can take it from your system. You can upload it. There are themes, ready-made designs. You can take it from here. If you want for your personal use, you can take it. There are different subjects. According to that, the themes are given. You can use these as a headers. But as we are working school, we have to use something specific. So I'm browsing it because I have that header in my system. So I will just scroll down because it is already downloaded there. Can you see here? This is the header here. So I'm just taking this header, opening it. And this headers you can create and customize also through Canva. Whatever you want to wish, you want to use, you can customize it. Okay, this is not the opt one. Wait, let me take another one. So it is there. This one is the correct one, which is designed accordingly to the header size. So when we insert this, we upload it from our computer. See, it is there. So it is of Delhi Public School Varanasi. You can use of Nasik, Nagpur, whichever. So now this is compulsion. We are using this header only for each and every form. So after that, you can give a title to the form for what you are going to use, as you are using for feedback, as you are going to conduct a quiz or a snap test, you can write that. If you want to give any instruction about that, you can write it here. You have an option also here, bold, italic, underline. In case you want to insert any link also, you can insert it. You can put the bullets or the numbers. That also you can do when you are putting an instruction. It can be bulleted or number wise. And then you want to remove the formatting. You don't want that bullet, italic or underline. You can click on this. All formatting will be removed from here. So this was there. Then let's move towards the theme here. Now theme you can change. Roboto, it's written there because we are using Roboto. Roboto and Titanium is the two thing. Titanium we are using for the headings. Everywhere, whichever thing is there, we are using presentation or something. This is a brand textile which we are using. Titanium for the headings and Roboto for the text. So I have also used here Roboto. Then font size. Font size you can take 1 minute. Okay, so that is defined already here. Text also I have taken as a Roboto. If you want to change the color, see, as I have selected black here, you can take it red. Can you see the outlines here that are changed? If I select yellow, it is changed. So that is a background which is changing. You can see here, you can see this side, light green and then dark green. So this is how you can change. In case you want to add any specific, you can go to that plus sign and you can create your own
color background. Okay, add. So it is added to this, and this is the new background color which is added here. In case I want another one, I can go again and I can select, and then I can add here. See, this is again added. The new color is added here. Okay. So these are all colors. Now you can change the background if you want. That like color is that border one, theme one. And then you can change the background color also if you want white, if you want green, yellow. It will take the different shades of yellow. If you want green, it will take the different shades of green. Whichever dark light you want, you can take it from here. So this is the theme here. Now after this was the customizing of theme. You have put the header. Now there is one more option here, is add-on. So there are many add-ons present on Chrome, which is used for forms. So that I will be explaining afterwards. So these are Certify AM, form notification, form pal, form timer, form limiter. So these are different. You can explore and know it about it also. Then this is a preview feature, how your form will look like when it is created. So this is a preview mode. Okay. Now coming back after this, now here you can see a copy of responder link. So a copy of responder link you will find when you complete your form and publish your form. This is the new term came into Google form. If you publish it. In publishing also, there are many things I will be telling you afterwards. Just now, I'm telling you about the tools which are available here. So when you publish, there are many settings which you can do after publishing that I will be doing after creating the form. Then there are 3 dots here. When you click on 3 dots, you are going to create a copy of it. Whenever a filled form is there, you have a response is there. But when you make a copy, the response does not copy there. The blank form is copied with all the formatting features, the images, whatever you have done on that form, everything, the same questions that will be copied, but not the responses. All the settings will be copied, but not the responses. If you want to put this form into trash, you can put it from there. Pre-fill form, it's filled prior, that you can use. It's pre-filled form, you want to check, get a link, you can take it from here. Then embedded HTML, when you are learning coding and all and you want to embed something in this form, that you can do. You can print this form, app scripts. These things you don't use. Generally we make a copy, move to the thresh, and if you want to take a print, this only we use it. Then coming towards the question making. So I've given a title here, demo. As I give the title here, demo, see this demo is reflected here also. In case you want to change it, you can change there also. 1 minute, I'm coming to that page. Yes, Vibhuti ma'am. Ma'am, I just want to ask you. You said there was something called embed. Ma'am, how is it different from what we add image or something? Embed उससे अलग कैसे है? मतलब we embed codings in a form of coding. If you want to insert something, like it is in the Google site also, there are HTML codings of your image also, your form also. If you want to insert a PDF also, whatever it is, you are creating a you can say a web page and you want to insert in that. So you have a coding of that HTML, and that HTML coding you will copy there and you will insert, embed in this form. So that is different. Probably Yes, we ma'am? need to use it. मतलब use करना पड़ेगा. Embedding is something that I couldn't understand it. It's related to coding only. You can see here. Can you see?
This is link only, na actually. No, it is not the link. अच्छा. अब ये एम्बेडेड लिंक, अगर आप ये गूगल फॉर्म की एम्बेडेड है, ये कोडिंग है, ठीक है, हाँ. ये आप लिंक उठा करके आपने एम्बेडेड लिंक यहाँ से, मैंने मान लीजिए इसको कॉपी किया, ठीक, अब मैं यहाँ पे गूगल साइट में जाती हूँ, आई एम ओपनिंग अ गूगल साइट, ठीक, अब यहाँ पे देख रही है एम्बेडेड दिख रहा है, अब यहाँ पे मैंने वो कोड उठाया और यहाँ पे डाल दिया, हाँ. अब ये बोल रहा है URL इज नॉट वैलिड, इजंट वैलिड बिकॉज मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर, ये क्योंकि कोडिंग की चीजें होती हैं, ठीक है, मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर, देख रही है एम्बेडेड ट्रू, ये सब एक कोडिंग होती है, डॉक की ही कोडिंग है गूगल फॉर्म की, आ रही है, ओके. ठीक है, और उसमें अब कुछ वैलिडेशन इसमें होगा जो मैं कॉपी करने में गलती कर रही होंगी, तो यहाँ पे हम URL क्योंकि मैंने वहां पे दिया था, ये देखिए, सॉरी, एम्बेडेड कोड है, यहाँ पे मैंने ये कोडिंग पेस्ट कर दिया, कैन यू सी हियर, नेक्स्ट द फॉर्म का वो एम्बेडेड कोड, हमें अगर एम्बेडेड कोड के थ्रू यहाँ पे फॉर्म इंसर्ट करना है तो मैंने इंसर्ट कर दिया, ये क्योंकि पब्लिश नहीं है इसलिए इसने नहीं लिया, यहाँ पे दिख रहा है वी आर सॉरी दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट पब्लिश, अब ये कोडिंग के थ्रू हमने यहाँ पे फॉर्म को इंसर्ट कर दिया है, एम्बेड कर दिया है, ठीक है, अब वैसे ही किसी डॉक्यूमेंट का हम ऐसे ही एम्बेडेड कोडिंग ले लेते हैं, HTML वेब पेज का कोई कोडिंग ले लेते हैं, हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे एक मिनट, मेरे पास अगर वेब पेज की भी कोडिंग होगी, हाँ मेरे पास है, ये देखिए, ये एक वेब पेज है, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, ये जैसे HTML में हम बच्चों को वेब पेज बनवाते हैं, ओपन विद किया मैंने, इसका नोटपैड में खुला है जहां पे बच्चों ने कोडिंग किया है, अब ये कोडिंग यहाँ पे है, इस पूरी कोडिंग को मैंने कॉपी किया, ठीक, अब मैं आ रही हूँ अपने साइट पे, अब यहाँ पे मैंने एम्बेड किया, एम्बेड कोड पे गए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट किया, ये देख रही है, दैट वेब पेज का जो भी है वो यहाँ पे आ गया, इंसर्ट हो गया, ओके, ठीक है, गॉट इट. तो ये कोडिंग को ही हम एम्बेड करते हैं यहाँ पे, थैंक यू मैम. वेलकम। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में, सो क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म, यू कैन सी हियर शॉर्ट आंसर्स, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, checkbox, drop down, file upload, linear scale, rating, this is new added here, multiple choice grade, checkbox grade, date and time. Short answers, when you want a student to write a few lines here, okay, that is going to be manually checked when you are creating a quiz or something like that. Same is with the paragraph also, more than the short answer, more lines required, so we go for paragraph. This is also manually checked. Multiple choice, like there are multiple answers there but only one answer is correct, then we use this multiple choice option. If only one answer is correct, then we use this circle one. If there is a question in which more than one option is correct, then we go for checkbox. Then here also, in case we are creating, we want student to select something. If I am writing here class and I want a student to select that class, you are of class 1, you are of class 2, you are of class 3, or it can be section, or it can be any answer if a child want to opt or select. So that can be also used as a drop down. जैसे हमने multiple choice किया,
वैसे ही ड्रॉप डाउन में भी हम मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। आपने जो आंसर टिक करना होगा आप कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारा करेक्शन वाला चीज नहीं है। यू कैन सी हियर, ये ड्रॉप डाउन जनरली हम करेक्शन के उससे नहीं करते हैं। ये एक चॉइस होती है क्लास के लिए, उसके लिए सेक्शंस के लिए हम डाल देते हैं कि कौन सा आपको ऑप्ट करना है। व्हेन यू गो टू प्रीव्यू ऑप्शन, यू कैन सी हियर चूज, कोई एक चूज करना है, ये करेक्शन के तरीके से नहीं है। सो कोई भी एक, मैं क्लास 2 की हूँ, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, क्लास सेलेक्ट करने के लिए, इफ वी आर यूजिंग दिस, जैसे अब इंडियन है कि फॉरेनर है, इस टाइप का कुछ सिलेक्शन है तो वी यूज दिस ड्रॉप डाउन। देन फाइल अपलोडिंग, व्हेन वी यूज फाइल अपलोडिंग, यू वांट योर चिल्ड्रन टू अपलोड सम फाइल। अब फाइल अपलोडिंग में when you go below, you will see that allow only specific file. If I click on this, then it will ask me which type of file you want specifically the student to attach. If you say document, if you say presentation, spreadsheet, whatever it is, you can check multiple thing also here. In case you want only audio file, nothing else, so you will click on audio. If you want only video file, you can click on video file. So children will not be able to submit any other file except video. आपका फॉर्म अगर उसको आपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन में डाल दिया होगा, तो जब तक वो वीडियो को नहीं सबमिट करेंगे, वहां पे नहीं लगाएंगे, योर फॉर्म विल नॉट बी सबमिटेड। Yes, Sonal ma'am. I'm sorry by mistake. But then I want to ask you, if suppose we are taking this form, so why we are attaching file here, ma'am? Because we have to, the short answers will do manually, and all the MCQs and checklists will be done on their own. In case, So why we are in case attaching you file want, here, ma'am? in case you want your student reflection in a video form or in a audio form, Oh, so file भी attachment हो सकता है वहाँ पे। Yes, विभूति मैम। I just want to tell Sonal ma'am, like there was this our assessment the speakers club assessment. So I remember I asked them to attach an audio of their recording. So that way also, ma'am, अगर हम उनको TED का करना चाहते हैं, we can share a form saying कि fill the form and attach your recording to it. Recording, it can be in a video form also, it can be in a audio form also. बट मैम इसमें ना एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, दैट वाज अबाउट द MB एंड GB ऑफ इट. तो हाउ डू वी डिसाइड कि व्हाट लिमिटेशन, आप yes, मैक्सिमाइज फाइल कितनी, मिनिमम फाइल आपकी कितनी हो सकती है, मतलब कैसे पता चलता है लाइक 1 मिनट का अगर उन्हें ऑडियो रिकॉर्ड करवाना है तो कितने MB का होगा वो, मतलब वो कैसे? आप उसको ना, वो फाइल को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी साइट होगा या फॉर्म भर रहे होंगे, तो वहां पे एक लिमिट दे देते हैं, क्योंकि ड्राइव में वो चीज ज्यादा ओवर फ्लडेड ना हो जाए, हमारे ड्राइव की चीजें ज्यादा भर ना जाए स्टोरेज, तो हम वहां पे इनको दे देंगे। मान लीजिए 1 MB भी हमने कर दिया, चिल्ड्रन विल देन कंप्रेस दैट फाइल एंड सबमिट हियर. Okay, so Make it because 1 it is MB taking and up our memory space, hence Yes. we need to give this. Yes. This. Okay. Yes. Thank you very much, ma'am. Thank you. Okay. Then maximum number of files you can restrict here student with the number of files 1, 2, 3, 5, whatever it is. Maximum 10 files they can submit. Okay. Then this is done. If it is a required, then you can see the required. And when you give this type of question of attaching video, audio, or any file, PDF, something, it is stored in a folder. You can see here view folder. Whatever the name of the form is there, a folder is created with the same name. And then when you want to view that folder, you can see all the files are there in that folder. Can you see class training, file responses,
All the things will be in this folder. Clear? Any doubt till here? Okay. Now after file uploading, linear scale. So let me attach another question and I'm moving to linear scale. Now can you see here linear scaling? This is given for your feedbacks or anything such like you want your children to give marks in case you are taking something in the class. You can say a peer work you are doing in the class and you want your children to give marks to that child, another child. So you can write the name here, like if I write here Smita and I want the rating of my conduction or my things. Yes, Ajay sir? जय मैम, Jain sir? हमें एक छोटा सा डाउट था इसके अंदर. हमें स्कूल में सीयूईटी बनाना होता है गूगल फॉर्म से, राइट मैम? उसके लिए मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन देने हैं 20, तो टोटल मार्क्स होना चाहिए 10.50 मार्क्स का एक क्वेश्चन. इसको कैसे कर सकते हैं मैम? आपके क्वेश्चन होने चाहिए, आपके 20 क्वेश्चन आपको देने हैं और मार्किंग कितनी डिफॉल्ट होनी क्वेश्चन चाहिए? पॉइंट वैल्यू, क्या हम डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू को 0.5 कर सकते हैं क्या? आई थिंक सो. मैं यहाँ पे देख के बता रही हूँ आपको जी. अब जब हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं, लेट मी क्रिएट वन मोर क्वेश्चन हियर. मल्टीपल क्वेश्चन भी देना चाहते हैं, मल्टीपल यहाँ क्वेश्चन पे सर सेटिंग में, जब हम सेटिंग में जाते हैं जी यहाँ पे हम डिफॉल्ट मार्किंग करते हैं. जी. डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू हाँ 0.5 मैंने किया, बट वो सिस्टम के अकॉर्डिंग उठा नहीं रहा वो चीज. एक मिनट में देखूं कहाँ पे है. वो ले नहीं रहा है. नहीं मैम, तो फिर भी 1 ही कंसीडर करता है. ऐसा क्यों मैम? एक मिनट, इसको क्विज बनाओ पहले. मेक अ क्विज. मल्टीपल क्वेश्चंस के टाइम पर मैम जब मेक अ क्विज करेंगी तब बनेगा और वो पॉइंट्स में नहीं आता है. जी पॉइंट्स में नहीं आता है शायद. वो नहीं उठा रहा ना वो मैम पॉइंट. पहले भी नहीं होता था पॉइंट्स में. मैम पहले पॉइंट्स भी नहीं होता है. 1 2 3 4 होता है मेरे ख्याल से. पॉइंट पॉइंट्स पे नहीं लेता है सर. आप उसको बाद में कर सकते हैं. अगर रिस्पॉन्स शीट आपने निकाल लिया है तो वहां पे फॉर्मूला लगा करके आप उसको चेंज कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ से नहीं हो सकता. यहाँ से नहीं. ठीक है, ठीक है मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. वेलकम सर. सो ये हो गई. यहाँ पे मैंने स्मिता की रेटिंग के लिए कहा 1 मीन्स नॉट एफिशिएंट, एंड 5 मीन्स एक्सपर्ट. अब हम बच्चों से करा रहे हैं. हम सिंपल उनसे बच्चों से फीडबैक ले लिया. एक ग्रुप है, हमने 5 ग्रुप बना दिया. 5 ग्रुप का प्रेजेंटेशन हो रहा है. मैंने ग्रुप वाइज बच्चों का यहाँ पे ग्रुप दे दिया. अब बच्चों को हमने दे दिया कि इसमें मार्किंग करो कि एफिशिएंट था, नॉट एफिशिएंट था. उसके हिसाब से अगर हमें मार्किंग करनी है तो सिंपली वी कैन गिव एज अ लीनियर स्केल दिस क्वेश्चन. ये चीज हम स्केल रेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं कि गिव द मार्किंग रेट *1, ये 1 6 5, ये आप रेटिंग बढ़ा सकते हो. इसमें 9 कर दिया तो 9 रेटिंग, 10 रेटिंग, टिल 10 यू कैन रेट देम. और ग्रुप का है सो यू कैन गिव आइदर द लव और द थम्स अप और द स्टार. सो इफ आई गिव this, if you want to give the heart, so you can give heart here. select करेंगे बच्चे. yes, एक झोला निकालो. yes अजय सर. अभिलाषा मैम बोलिए. सॉरी स्मिता मैम, ये रेटिंग जो लाई है मैम, स्टार वगैरह, ये कैसे लाई हम नहीं समझ पाए, फिर से एक बार समझा दीजिए. सेम चीज मैम. ये जो क्वेश्चन में आप जाएंगी ना, जहाँ पे लीनियर स्केल है उसके नीचे रेटिंग है. ओह थैंक यू मैम. ठीक है.
तो जब आप रेटिंग सेलेक्ट करेंगी तो ये चीज आपके पास सामने आ जाएगा। अब रेटिंग में 3 तरह के ऑप्शन, या तो आप स्टार दिलवा लीजिए, या तो हार्ट दिलवा लीजिए, या फिर थम्स अप। ठीक है, लाइक और डिसलाइक वाला। तो आप लाइक दिलवाते हैं तो लाइक का आ जाएगा कि हाउ मेनी लाइक्स यू वांट टू गिव, 4 लाइक्स, 5 लाइक्स, हाउ मेनी हार्ट यू वांट टू गिव, इट कैन बी डन लाइक दिस। तो ऐसे ग्रुप प्रेजेंटेशन के साथ, हम पीयर ऑब्जर्वेशन के साथ, या कुछ भी इस तरह का हम कर सकते हैं। देन कम्स टू अनदर क्वेश्चन। रेटिंग हो गया। मल्टीपल चॉइस ग्रिड। मल्टीपल चॉइस ग्रिड इज जस्ट लाइक मैच द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। अभी मल्टीपल चॉइस ग्रिड हमारे पास आया था जब हम अपने एलएल्स के फीडबैक को भर रहे थे। इफ यू हैव सीन रो कॉलम, एड कॉलम, यहाँ पे हमने लिखा स्मिता, यहाँ लिखा नॉट गुड, प्रेजेंटेशन, ये मेरे फीडबैक में भी है। ओके, now you can see here when I go for preview, so I'm getting these 2 option for Smita, not good, okay, क्योंकि मैंने 2 कॉलम वहां पे लगा दिया था। I am giving the options, यहाँ पे स्मिता प्रेजेंटेशन, इसके संग 2 ऑप्शन आ गया। इन केस आई वांट टू इंक्रीज दिस कॉलम, यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रेनिंग, नॉट सो गुड। सो अब यहाँ पे 3 चीजें हो गई, 3 कॉलम बन गए, ये 3 फील्ड के लिए। इन केस आई लुक एट द प्रीव्यू, now see 3 columns are added, whichever option is correct हमने वहां पे टिक कर दिया। so this you will find in my feedback form also. yes ma'am। स्मिता मैम, एक फॉर्म होता है जिसमें कि हम लोग आगे बढ़ने से पहले, मान लीजिए जैसे बच्चों ने अगर यस किया तभी वो आगे बढ़ेंगे, उनके लिए फॉर्म ओपन होगा, अगर उन्होंने नो किया तो फिर वो वहीं क्लोज हो जाता है। वो सेक्शन होता है, आई एम कमिंग टू दैट। हाँ, वो सेक्शन बता होता है, ठीक है। Wait a minute, let me close all the previews. छोटा Okay, so after this moving to another question. yes Sonal ma'am। तो मैम वो जो सेक्शन वाली बात है, वो जो एकदम लास्ट में जो राइट हैंड साइड के रहता है वही ना होता है सेक्शन? हाँ, इसमें हम लोग का नेक्स्ट, हाँ ये वाली चीज होती है सेक्शन, दिख रही है, एड सेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ये हो गया, मल्टीपल चॉइस ग्रिड हो गया। इसी तरह से चेक बॉक्स होता है, सेम इसी पैटर्न में चेक बॉक्स भी होता है। बस मल्टीपल चॉइस ग्रिड में होता है ये है कि कोई एक ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, और चेक बॉक्स ग्रिड भी सेम इसी तरह का आएगा। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको स्क्वायर बॉक्स दिखेगा। अब स्क्वायर बॉक्स का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो, जैसे यहाँ पे कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता, नॉट गुड, ओके दोनों नहीं हो सकता। बट ये जो चेक बॉक्स है इसमें दोनों हो सकता है। अगर आप स्मिता के आगे नॉट गुड या ओके दोनों ही आप टिक करना चाहते हैं तो वो दोनों ही ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। सो दिस इज यूज्ड फॉर, चेक बॉक्स इज यूज्ड फॉर द सेम। खाना खाने के लिए कब से अब उसके बाद आता है कि आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि डेट को इंसर्ट करें, तो द कैलेंडर इज इंसर्टेड ऑटोमेटिकली हियर व्हेन यू क्लिक ऑन द डेट। सी यू कैन सी इन द प्रीव्यू, हाँ ये कटोरी में रखे हैं, निकाल कर। this is the calendar inserted here. You don't have to write name, class, anything. You just have to click, automatically the current date will appear here. In case you want to change the date, you can change the date. By default, it will take the current date. So this is
there, and after this is the last one, that is time. Same as date was inserted, in the same way time is inserted. When you check the preview, you can find the PM and AM section here, and you can insert the time which you want. Yes, Sonal ma'am. हम उसको बस क्लिक करके जैसे डेट आ गई उसी तरह क्या कर, जैसे नहीं जो फॉर्म बंद हो जाता है वो भी इससे हो सकता है टाइम से? नहीं मैम, वो फॉर्म लिमिटर होता है, फॉर्म क्लोजर होता है। जब आप लिमिटेशन लगाती हैं फॉर्म में कि इतने फॉर्म की एंट्री होने के बाद वो लिमिटर, जो मैंने बताया था एड ऑन, वो क्रोम एक्सटेंशंस होते हैं। जब आप लिमिटर लगाएंगी तब उस पे वो फॉर्म बंद हो जाता है उतनी एंट्री के बाद, ऐसे फॉर्म नहीं बंद होता। उसमें तो बस क्लिक करेंगे डेट पे तो डेट आ जा रही है ना, बस डेट आ जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चंस जो हम इंसर्ट कर सकते थे। उसके बाद आते हैं, ये प्लस साइन से हमने क्वेश्चन इंसर्ट किया, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इंसर्ट किया। अब उसके बाद आते इंपोर्ट क्वेश्चंस। इन केस आपके पास गूगल फॉर्म बना हुआ है ऑलरेडी और उसमें से आप कुछ क्वेश्चन, जैसे आप बार बार नेम, क्लास, सेक्शन, ये वाली चीजें आप बार बार नहीं चाहते, वहां से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको उसमें से लेना ही लेना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट। आप माई ड्राइव में चले जाइए, माई ड्राइव में जहां पे भी आपने वो फॉर्म रखा होगा उस फॉर्म को सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा फॉर्म है, कहाँ पे है। अगर नहीं है तो एक बार खोल लीजिएगा उस फॉर्म को, तो वो रिसेंट में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब मैंने रिसेंट से फॉर्म उठाया, मैंने एक लेवल 1 ट्रेनिंग उठाई, यहाँ पे इंसर्ट किया। अब लेवल 1 की ट्रेनिंग में जितने क्वेश्चंस मैंने डाले थे वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मुझे जो चाहिए, मुझे बच्चे का फुल नेम चाहिए, मैंने ले लिया। स्कूल का नाम चाहिए, ले लिया। कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ले लिया। ये 3 क्वेश्चन मैंने ले लिया और इंपोर्ट कर लिया। अब तुरंत मेरे यहाँ पे वो क्वेश्चन रेडी होके आ गया। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। फुल नेम इज रिटन, स्कूल इज रिटन, कॉन्टेक्ट नंबर इज रिटन, इट इज देयर। ये न्यू पर की है ना स्मिता मैम? हाँ, न्यू पर की है ना? न्यू पे नहीं है मैम, प्लस साइन के ठीक नीचे वाला है। यस नीरू मैम। जी मैम, सेम डाउट। जय हिंद मैम। मैम कैसे इंपोर्ट किया, प्लीज दोबारा बता सकते हैं? क्या मैम? जी थैंक यू मैम। दिस इज द फॉर्म। ठीक है, अब ये प्लस साइन दिख रहा है, मुझे एक नया क्वेश्चन चाहिए। मैं लास्ट में इस कर्सर पे हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके नीचे चाहिए, मुझे कुछ इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मुझे एक भी फॉर्म से, किसी भी फॉर्म से मुझे कुछ क्वेश्चंस चाहिए। मैंने फॉर्म उठाया, इंसर्ट किया, उस फॉर्म के क्वेश्चंस यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है यहाँ पे फॉर्म के क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये वाला फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे दूसरा फॉर्म चाहिए, सो क्लिक ऑन चेंज फॉर्म। आप दूसरा फॉर्म खोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए सारे फॉर्म खुल गए, जितने भी फॉर्म मेरे ड्राइव में थे वो सारे फॉर्म्स आ गए यहाँ पे। मैंने कोई भी फॉर्म यहाँ से उठाया, एक मान लीजिए मैंने एक ऐसे ही ले लिया, एल्मेनिक डिजाइन वाला फॉर्म, यहाँ से मैंने ले लिया। यहाँ से मैंने क्लास और सेक्शन मुझे चाहिए था, मैंने क्लास और सेक्शन ले लिया। काइंडली अटैच द डिजाइन हियर। अब इस क्वेश्चन में फाइल अपलोडिंग भी है, मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब ये देखिए, जैसा ड्रॉप डाउन लगा था, ये फाइल मैंने डिलीट कर दी थी, वो इसलिए बोल रहा था। ये देखिए, जैसा वहां पे था ड्रॉप डाउन्स थे तो ड्रॉप डाउन आ गया। जिस तरह का क्वेश्चन वहां पे क्रिएटेड था, अटैच डिजाइन आ गया। जो भी सेलेक्ट किया था मैंने, वो चीज ऑप्शन सेलेक्टेड आ गया इस पे। Yes, thank you so much ma'am, wonderful thing. Okay, thank you. After importing this question, next is add title and description. You want to add a title here. When you create a section and you want to add a title there, then we use this generally कि या तो हम सेक्शन ए या सेक्शन बी करके कुछ बना रहे हैं तो भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ लिख दिया सेक्शन बी, जैसे हम क्वेश्चन पेपर में करते हैं।
तो क्या है, और तो चावल बने ही नहीं। उसके बाद सेक्शन बी में क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट क्रिएटिंग क्वेश्चंस। तो अब ये हेडिंग टाइटल जैसे बन के आ गई कि दिस इज सेक्शन बी, आफ्टर दिस यू हैव टू कंटिन्यू विद डिफरेंट क्वेश्चंस। यस सोनल मैम। मैम अगर डॉग पे हमने क्वेश्चंस बना के रखे हैं और नहीं, उसके डॉग से इंसर्ट नहीं हो पाएगा। नहीं हो ना वो चारों स्कूल की होती है, तो जो रिकॉर्डिंग करती है वो एक ठीक है। गूगल फॉर्म से ना अच्छा सो ये हो गया आपका सेक्शन। चारों स्कूल की होती है। आफ्टर दिस ये हो गया आपका टाइटल या डिस्क्रिप्शन जो आप दे रहे हो, यहाँ पे दे दिया। उसके बाद इन केस यू वांट टू इंसर्ट अ इमेज इन योर क्वेश्चन, सो अब आप इमेज कहाँ से लेना चाहते हो, वो आपके ड्राइव कंप्यूटर में है तो अपलोड कर लीजिए। वेबकैम के थ्रू अपनी पिक्चर आपको लेनी है तो आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं। सी माई पिक्चर इज देयर, इफ आई वांट टू इंसर्ट आई कैन जस्ट क्लिक एंड इंसर्ट। इस ट्रेनिंग को हम डाउनलोड कर रहे हैं, हमें डाउनलोड का राइट नहीं देती है। So my picture will be inserted. रिकॉर्ड करके In case you want to go by URL, आपने कहीं पे गूगल में कोई पिक्चर देखी हुई है, कोई इमेज दिखा है, फ्लावर, जैसे मैंने लिया फ्लावर, यहाँ पे इमेजेस में गए। नाउ मुझे ये रोज बहुत अच्छा लगा, मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस लिया, यहाँ से इमेज का मैंने एड्रेस लिया है। मैं यहाँ पे आई, फिर से यहाँ पे वो URL पेस्ट कर दिया, saying that URL is not valid. Wait, let me take another URL. ये ओपन करके लेंगे तो आ जाएगा। तो अपना अपडेट करेंगे ना। हम ये यूट्यूब पे डाल देते हैं, वहाँ पर वो देखते होगी, वो देखे ना देखे तो भी मेरा बिगाड़ है। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये मेरा है, तुम्हारी किस चीज को तो नहीं डाल रहे ना। दाल फ्राई बनाए लेकिन प्याज लहसुन नहीं लग रहा है। ये आ गया। जब मैंने पिक्चर को ओपन किया, पूरा URL लिया तो आ गया। अब मैंने ये इमेज यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका है, फोटोज में जाके आपके पास गूगल फोटोज होगा, जहाँ पे आपने सारी फोटोज अपनी अपलोड की होगी, आप उस फोटोज को वहां से भी ले सकते हो। गूगल बाय डिफॉल्ट सेव करता है, अगर आपने गूगल फोटोज में अपनी फोटोज को सेव किया हुआ है तो आप वहां से भी फोटोज ले सकते हो, आप लगा सकते हो वहां पे फोटोज। फिर गूगल ड्राइव में अगर आपके इमेजेस हैं तो यू कैन टेक फ्रॉम गूगल ड्राइव ऑल्सो, विच एवर फोल्डर इट इज। इन केस इन रिसेंट यू हैव एडेड समथिंग, रिसेंट में आपको वो इमेजेस मिल जाएगी, आप वहां से ले लीजिए। किसी ने शेयर किया है तो शेयर विथ मी में देख लीजिए। और इन केस यू वांट टू सर्च इट फ्रॉम गूगल इमेज तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा बच जाएगा, क्या करना है, छोटा ले लेगा ना। You can use any image after searching. So this is how you can insert image in your Google form. Clear? After image, in the same way you can add videos also. Take YouTube video, you search for any topic. You have the videos here, and in case you want to insert any short video, you can take a short video. This is of 3 minutes. The video insert हो गई है। हम खाएंगे नहीं। You can see the preview. पापा के लिए चलो। कोई So आ the जाएगा, pictures are here. The video is here. You can play the video. You can give such type of question when you want your student to see some video and reflect upon that video in the Google form only. So insert the video, ask them to reflect or give them any question related to that video and you get the answers from there. लगना नहीं चाहिए।
I think this much is clear. Any doubt till here? हेलो स्मिता मैम, हाँ जी मैम। स्मिता मैम जो वीडियो आपने ऐड किया प्लीज एक बार उसको प्ले करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा वाला नहीं हो रहा है। ये देखिए। हाँ ये तो चल रहा है आपका। इसकी कुछ लेंथ है, कितने मिनट का वीडियो ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो ये वीडियो भी ऐड हो गया। अब आती है लास्ट चीज जो कि है ऐड सेक्शन, जैसा कि आप पूछ रहे थे। अब मुझे मान लीजिए नेम क्लास सेक्शन पूछने के बाद मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला, यहाँ पे क्वेश्चन डाला सेक्शन वीव में कि if you want to go for descriptive answer, क्लिक ए। ठीक, यहाँ मैंने ए डाल दिया, अदरवाइज बी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने ये आंसर डाला, यहाँ पे ए या बी, मैंने यहाँ से सेटिंग कर दी। पहले मैं सेक्शन बना दूं, यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद मैंने सेक्शन बना दिया। ठीक, ये दूसरे सेक्शन में आ गया। बी करेगा, ए करेगा तो डिस्क्रिप्टिव आंसर में चला जाएगा, बी करेगा तो सेक्शन 2 पे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे जहाँ पे ए था, मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स पे गई, मैंने यहाँ पे लिखा गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। ये तो और ही चले जाओ आंसर की में तो हम भी खड़े रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मना कर देते कि लिखा। अब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो मामा से कहे थे ना कि यहीं आ जाओ, यहीं रहो। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। अगर उसने ए सेलेक्ट किया तो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सेक्शन के लिए, गो टू सेक्शन 1 डेमो वाले में। और दूसरा ये अनटाइटल्ड सेक्शन है, मैं यहाँ पे इस सेक्शन का नाम दे देती हूँ डिस्क्रिप्टिव। ठीक, अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा जब ए सेलेक्ट करे तो वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे जाए, गो टू सेक्शन 2। ठीक, और यहाँ पे कंटिन्यू नहीं, गो टू सेक्शन 1, मतलब सेक्शन 1 पे ही रहे अगर बी सेलेक्ट करता है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ मैं ये पब्लिश कर रही हूँ। हमने ये पब्लिश किया, यहाँ पे मैंने मैनेज किया एनीवन विद द लिंक, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्कूल के टीचर्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया एनीवन विद द लिंक, डन। अब मैंने यहाँ से पब्लिश किया और मैंने रिस्पॉन्डर लिंक ले ली यहाँ से। अब मैं ये लिंक आपको जीसी इसमें मैसेज बॉक्स में डाल रही हूँ। थोड़ा टीडियस होगा क्योंकि ऊपर की इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, बट आप इसको चेक करने के लिए, सेक्शन चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो। आप किस सेक्शन में जा रहे हो इसको आप चेक कर सकते हो। बगल में बैठे चलाते हैं आराम से। मैं यहाँ से प्रीव्यू में भी दिखा दूंगी। ये मुझे पूरा भरना पड़ेगा, अटैचमेंट भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एक कोई वीडियो फाइल या कुछ अटैचमेंट मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें मुझे याद भी नहीं। अच्छा रुक जाइए, मैं क्वेश्चंस को कुछ डिलीट कर देती हूँ जो कंपल्सरी ना हो, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ऐड फाइल वाला मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से।
देखो नानी के घर गए, कल हमको 500 रुपए मिल गया ना। तिल दादी आप भी तैयारी कीजिए। अब देखिए भर के फाइल अटैचमेंट वाला मैंने हटा दिया क्वेश्चंस। अब ए और बी सेलेक्ट कीजिए, देखिए आप कहाँ जा रहे हो। स्मिता नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, मेरा तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। कोई बात नहीं मैम, बाद में करेंगे। टेबल पर छोटा किसी ने चेक किया? मैम जब क्लिक कर रहे हैं ए को तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वो उसी पे रहेगा ना। अच्छा हाँ, मैं दिखा रही हूँ, मैं उस लिंक को नए उसमें पेस्ट कर रही हूँ एंड आई एम शोइंग यू। ठीक है, डेमो है, रिकॉर्ड कर लिया मैंने, ऐसे ही क्लिक कर दिया। यहाँ पे रो कुछ नहीं था इसलिए डेट सेलेक्ट कर लिया, टाइम कुछ भी डाल दिया, फुल नेम, क्लास, सेक्शन। अच्छा ये वाला अटैच फाइल रह गया है, रुक जाइए एक मिनट, एक और रह गया अटैच फाइल। कर दिए। ठीक, अब ये आ गया। सेक्शन बी पे मैं आई, यहाँ सेक्शन बी है, मैंने कहा ए, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट पे ए सेलेक्ट करते ही, लेकिन अगर मैं वापस गई, मैंने कहा बी, अब नेक्स्ट पे नहीं आएगा, अब इसी फॉर्म पे रहेगा, पहले वाले पे ही रहेगा। ये देखिए ये इसी फॉर्म पे रह रहा है। अगर मैंने ए किया है तब ये नेक्स्ट सेक्शन पे चला गया और यहाँ सबमिट बटन है। क्लियर है? Okay, so I can see 3 responses here. 4 is there. Varsha ma'am, Vibha ma'am, Kavita ma'am and Suchita ma'am is doing. I can see the responses. अब आती है उसके बाद, yes Varsha ma'am, it's great. Okay, thank you. अब उसके बाद आती है बात, हम रिस्पॉन्स का क्या करें। देखिए यहाँ पे अगर हमें रिस्पॉन्स बच्चों का इंडिविजुअली देखना है, ये समरी हो गई, हम समरी देख सकते हैं, किसने क्या दिया हमें तुरंत पता चल जाएगा। आपका ईमेल आईडी आ रहा है, आपके स्कोर्स भी आ जाएंगे, अगर मैंने मार्किंग वहां पे दी होती तो स्कोर्स भी आ जाता। किस प्रेजेंटेशन पे, ट्रेनिंग पे क्या रिमार्क मिला है वो भी आ गया। रो 1 कहाँ पे भरे हैं, कौन सी डेट दिया है, क्या टाइम दिया है, किसने क्या क्या लिखा है, नाम आ गया। ये आ गया कौन सी क्लास है, मतलब 5 के 4 बच्चे हैं, 6 का एक कोई बच्चा है, 7th का एक कोई बच्चा है और 8th का भी एक बच्चा है। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ये सब अभिलाषा मैम। स्मिता मैम मैं कर रही हूँ ना, तो टाइम वाले पर मेरा जो इनवैलिड दिखा रहा है, बाकी सब तो हो जा रहा है, लेकिन टाइम वाले पर नहीं हो रहा है, इसलिए सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। कोई एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ मैम, वहाँ पे नहीं जीरो भी मांग रहा है टाइम में। टाइम में इफ इट इज 5 तो 5 के साथ 0 भी मांग लगाना पड़ रहा है, तब जाके हो रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों चीजें हैं ना। ठीक है, अब ये हो गया। आपके सेक्शन भी इसी तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं, कौन से कलर ई में एक बच्चा है, डी में एक बच्चा है, एफ में। ये ग्राफिकल आप इस तरह से ये आप क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। ये समरी हो गई। फिर एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो कि जो जो हमने क्वेश्चन दिया है उस पर क्या क्या आंसर्स आए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का नीचे है, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या रिस्पॉन्स आए हैं वो भी दिख जाएगा। देन कम्स इंडिविजुअल, किसी एक बच्चे का आपका देखना है कि उसने क्या भरा है। तो मैंने जैसे वर्षा मैम का किया, वर्षा मैम का मैंने देखा ओके ओके ओके,
कॉलम 1 डेट ये भरा, ये स्पेसिफिकली किसी एक बच्चे का बिफोर डाउनलोडिंग द रिस्पॉन्स शीट। उससे पहले अगर आप इंडिविजुअल किसी बच्चे का देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन आप मैनुअली करते हो, हम सेटिंग में भी आ रहे हैं, आप जो मैनुअली करते हो वो चेक करने के बाद यू कैन रिलीज द स्कोर फ्रॉम हियर। और इन केस यू वांट योर चिल्ड्रन डूइंग द वर्क, आप नहीं चाहते हो कि तुरंत सबको स्कोर या आंसर पता चले, तो वो भी हम सेटिंग में करते हैं और बाद में एक साथ जब बच्चे दे देते हैं तो वी कैन रिलीज द स्कोर आफ्टर दैट ऑल्सो। सो ये ऑप्शन तब आता है। सो वी आर गोइंग इन सेटिंग्स। इफ वी आर नॉट मेकिंग इट एज अ क्विज, तो सारे क्वेश्चन की जो भी मार्किंग होगी वो हट जाएगी। ठीक, क्विज बनाते हैं तो हम मार्किंग और ग्रेडिंग दे सकते हैं। रिलीज ग्रेड जो मैंने अभी बताया, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जैसे ही सबमिशन करे, फॉर्म सबमिट पे बटन दबाए, तभी आपके मार्क्स जो है उसको दिख जाए कितने मिले हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर्स हैं, सो यू कैन टेक फॉर लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तो उसको मैनुअली चेक कर लीजिए और ये ऑप्शन क्लिक कर दीजिए तो बच्चों को स्कोर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है? Now respond aren't allowed to open any tab। ये वाला फॉर्म अगर आप क्रोमबुक पे काम कर रहे हैं, बच्चे क्रोमबुक को ओपन करके काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे नहीं करा रहे हो, आप सिस्टम पे नहीं करा रहे हो, दे आर ओपनिंग इट थ्रू क्रोम बुक, जैसे आप क्लासरूम में कराते हो जब भी, तो बच्चा कोई ऑप्शन ना दूसरा टैब खोल सके, यू जस्ट ओपन दिस। क्रोमबुक के साथ बच्चा सिर्फ इसी टैब पे काम कर पाएगा और किसी टैब पे काम नहीं कर पाएगा। मिस्ड क्वेश्चन, अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन मिस किया है वो उसको पता चल जाए, वो डायरेक्टली वहां पे लेके चले जाए कि ये क्वेश्चन मिस हुआ है, तो वो प्रॉम्प्ट करे बिफोर सबमिटिंग, तो ये ऑन कर दीजिए। बच्चों को करेक्ट आंसर ना पता चले, क्योंकि बच्चे क्या होता है गूगल फॉर्म जब करते हैं तो आंसर पता चल जाता है, तो दे टेल देयर आंसर्स टू अदर स्टूडेंट्स कि अच्छा इसका मेरा ये गलत हो गया तो तुम ये वाला करा दिया। तो आप नहीं चाहते हो कि बच्चे को करेक्ट आंसर पता चले, इसको क्लोज रखिए। पॉइंट वैल्यूज आप बच्चों को नहीं दिखाना चाहते हो अभी, पॉइंट वैल्यूज बंद करके रखिए। ठीक है? बाय डिफॉल्ट आपका 1 लेता है और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जितने नंबर आपको रखना है दैट यू कैन डू, बट नॉट अंडर 1, 0.5 नहीं कर सकते आप। किसी ने हाथ रेज किया है, ये सोनल मैम। मैम मान लीजिए जैसे हम लोग का अभी एनएसए का एग्जाम हुआ था, तो हम लोग को मैम ने बोला था कि मार्क्स मत दिखाना, तो वही पॉइंट वैल्यू बंद कर दिया था, तो बच्चों को नहीं दिखा होगा ना, उसमें मैन्युअली करने वाला तो कोई जरूरत नहीं थी। स्कोर रिलीज मत कीजिएगा, तब भी नहीं दिखेगा। जब आप पॉइंट वैल्यू बंद करते हैं तो उनको ये नहीं पता चलेगा किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स था। टोटल स्कोर आएगा, वो पता चल जाएगा। जब यहाँ पे आपने रिलीज कर दिया है, यहाँ पे ये ऑप्शन अगर लगा हुआ है और ये ऑप्शन बंद है पॉइंट वैल्यू, तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का 2 मार्क्स था कि 1 मार्क्स था, लेकिन मार्क्स रिलीज हो जाएगा, जितना आपने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके रिलीज हो जाएगा। अगर ये भी हटा देते हैं आप और ये भी छुपा देते हैं तो दोनों चीज नहीं दिखेगा। 12 बजे के तो था बात, अब ठीक है? रिस्पॉन्सेस का आप क्या चाहते हो? ये भी मतलब जैसे कि वो वाला ना मैनुअल वाला भी हटा दिया और इमीडिएटली वाला भी हटा दिया, और पॉइंट वैल्यू भी ना पता चलेगी। मैनुअल वाला ऑन कर देंगे और ऊपर वाला रिलीज इमीडिएटली वाला बंद कर देंगे, और ये इधर वाला डोंट टेल पॉइंट वैल्यू, तो ये दोनों बंद कर देंगे तो नहीं पता चलेगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पे कलेक्ट ईमेल एड्रेस है। जनरली क्या होता है, जैसे स्कूल में बच्चों को तो अपने ईमेल्स मालूम ही होते, लेकिन बाय चांस एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक होगा तो वो करेक्ट ईमेल आईडी नहीं लेता है। तो जनरली जैसे मैं अगर कोई सेशन लेती हूँ आउट ऑफ स्कूल, जैसे यहाँ पे स्कूल का न लेकर के बाहर का कोई लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि वेरीफाइड ही जो जीमेल आईडी हो उसको कलेक्ट करे। मतलब अगर उसने .com में CO लिखा, M नहीं लिखा, या M की जगह N लिख लिया,
तो वो बार बार उसको वहां तक ले जाएगा और बोलेगा कि सही ईमेल आईडी नहीं है, उसको सही करेगा, वेरीफाइड आईडी डालेगा। ठीक है। सेंड रिस्पॉन्डर और कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स, इसको हम ऑफ करते हैं क्योंकि आंसर्स बच्चों को पता चल जाते हैं, तो इसको हम जनरली ऑफ करके रखते हैं। इन केस नॉर्मल फीडबैक्स हैं या कोई ऐसा जनरली कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं तो वी कैन स्विच ऑन दिस पोर्शन, कि बच्चों को भी इसमें पता चल जाए कि मैंने क्या रिस्पॉन्स किया था वहां पे, मैंने इस क्विज के लिए मैंने ये हामी भरी थी, मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया था। तब आप इस चीज को ऑन कर दीजिए कि रिस्पॉन्डर के पास उस फॉर्म की इंफॉर्मेशन व्हाटएवर ही हैज फिल्ड वो पहुंच जाए। ये सुमन मैम। प्रज्ञा मैम इज नॉट एबल टू जॉइन द मीट, तो प्लीज उनको इन कर लीजिए। मैं नहीं कर पाऊंगी, आ गई मैम, आ गई। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अलका मैम बहुत जल्दी ज्वाइन की। ठीक है, अब ये हो गया अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। आप चाहते हो कि बच्चा अपने रिस्पॉन्स को एडिट कर पाए आफ्टर सबमिशन ऑल्सो, तब इसको ऑन कीजिए, नहीं तो ऑफ करके रखिए। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इफ यू वांट योर चाइल्ड शुड ओनली फिल 1 फॉर्म, नॉट मोर देन दैट, सो इसको ऑन कर दीजिए। ऑफ कर देंगे तो वो लगातार भरता जाएगा बार बार। ठीक है। सो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन। अब शफलिंग ऑफ क्वेश्चंस, जब हम शफलिंग करते हैं क्वेश्चंस को तो हम हमेशा सेक्शंस में डिवाइड करके करते हैं। पहले वाले सेक्शन को हम शफल नहीं करते हैं, हम दूसरे सेक्शन को शफल करते हैं जहां पे हम क्वेश्चन देते हैं, तब वो क्वेश्चन सफल होता है क्योंकि उसके पहले हमने मार्किंग नहीं दी हुई है। शफलिंग ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेकंड सेक्शन से करते हैं जहां पे हमने क्वेश्चन दिया, तब शफलिंग होगा। अगर बिना सेक्शन बनाए आपने शफल कर दिया क्वेश्चन को तो आपका वो जो नेम क्लास सेक्शन है वो सब भी शफल हो जाएगा, वो क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो जाएगा। आफ्टर सबमिशन कंफर्मेशन मैसेज, आप चाहते हो कि कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हो, यू आर अ स्टार, कुछ भी आप देना चाहते हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। सेव कर दिया। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, नहीं हमें नहीं दिखाना है इसलिए मैंने क्लोज किया हुआ है। दूसरा लिंक डालना है, मतलब उसी पे दूसरा रिस्पॉन्स चाहिए तो उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है। व्यू रिजल्ट समरी हो गया। डिसेबल ऑटो सेव ऑल रिस्पॉन्सेज, वो भी हम डिसेबल करके रखते हैं, ऑटो सेव ना हो कुछ भी चीजें। जैसे हमने अभी भरा और हमने फॉर्म बंद कर दिया तो जो भी आंसर्स हमने भरा होगा वो सेव नहीं रहेगा, अदरवाइज जब भी वो लिंक क्लिक करेंगे तो वो आंसर्स हमें दिखेंगे। फॉर्म डिफॉल्ट वही सेम चीज है। ठीक है। ये हो गया आपकी सेटिंग। आई होप मैंने सारा चीज बता दिया है। हाँ, अब एक और चीज आता है यहाँ पे, स्टार और ड्राइव का ये रहेगा। जहां पे भी आपको ये फॉर्म को सेव करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन द ड्राइव फोल्डर। जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है उस जगह पे ये फोल्डर को क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए 2025-26 के किसी हम स्पेशल उसमें हम डालना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग सेशन में डालना चाहा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने मूव कर दिया इस फॉर्म को। कहीं पे भी फॉर्म होगा वो इस जगह पे ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर आ जाएगा, तो हम मूव कर सकते हैं। So I hope this much is clear. Any doubt? मैं 10 मिनट आगे पहुंच गई हूँ। हेलो किसी को कोई डाउट? नो मैम, बहुत अच्छे से आपने बता दिया। हम कैंसिल कर दिए हैं, हमारे में कैंसिल दिखा रहा है और हमने लिख भी दिया कि आप अब एक्स्ट्रा एक पैसा और चीज मैं बता दे रही हूँ जो कि मुझे लास्ट में चाहिए। हाँ तो ठीक है, आप हमने कैंसिल अपनी तरफ से। आपको एक लिंक दे दूं फिर मैं बता दी हूँ। तो तुम जानो, हमसे क्या मतलब है। नाउ आफ्टर दिस जो मॉक टेस्ट तो दूंगी वो ट्रेनिंग के लिए मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद एक आपका एविडेंस मुझे चाहिए होगा, जो भी चीजें आपने सीखी है, कोई एक चीज आपने कहाँ क्लास में उसको इंटीग्रेट किया है, किस तरह से बच्चों के लिए कुछ बनाया है, ये सजे सर।
हाँ मैम, एक छोटा सा डाउट था। ये शफलिंग का आपने बताया ना, शफल करना है क्वेश्चन जी ऑर्डर। सर। तो मैम हम दो सेक्शन बना लेते हैं इसके अंदर, जैसे हमने बताया दो सेक्शन ए सेक्शन बी बना दिया। हाँ सेक्शन ए के अंदर हमारे सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी के अंदर प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, तो वो भी सफल हो जाएगा सर मैम ऊपर सब नीचे? सब सफल हो जाएगा सर। दिक्कत हो जाएगी सर, तो वहाँ करने में प्रॉब्लम होगी सर। हाँ ये वहाँ थोड़ा सब डाउट था। तो प्रैक्टिकल उसको क्वेश्चन में थ्योरी उसको का कैसे फिर ना चलेगा? हाँ उसको मैनुअली में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन रख रहे हैं तो मैनुअल जी चेकिंग करेंगे, तो उसको ऊपर ही वाले सेक्शन जी में जी रखिए, जी वो सफल नहीं होगा। नीचे वाले सेक्शन में आप मल्टीपल चॉइस करेंगे तो नीचे वाले सेक्शन जी में डाल दीजिए। जी, ठीक मुझे है। दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालना है हमने। जैसे हाँ 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के में सेक्शन 1 में डाल देंगे, दे आर कोई टोटली नहीं बेस्ड सर, ऑन थ्योरिकल आप बेस्ड। सेक्शन 1 सेक्शन बी ए बी जैसे कर रहे हैं ना आप, जी वैसे करके जी नीचे जो हमने बताया था हेडिंग करके, तो हेडिंग जी करके आपने डाल दिया सेक्शन 1 सेक्शन बी। जी अब उसके बाद सेक्शन बी को शफल कर दीजिएगा पूरा का पूरा, तो ऊपर नीचे सब शफल हो जाएगा। जी मैम, ठीक है, एक थैंक यू बार मैम, ट्राई करके थैंक यू। देखिएगा, हो जाएगा। जी बिल्कुल करेंगे, जी मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, मैं एक असाइनमेंट उसमें लगा दूंगी, क्लासरूम में लगा दूंगी, जहां पे आपने जो भी सीखा है उसका एक एविडेंस कि आपने उसको कैसे इंटीग्रेट किया है अपने क्लासरूम में, प्लीज वो लगा दीजिएगा। इट कैन बी अ गूगल फॉर्म, इट कैन बी अ डॉक। डॉक पे भी बहुत सारी चीजें सीखी है, ड्राइव में क्या बहुत सारी अरेंजिंग किया है, तो व्यूअर फॉर्म में व्यूअर उसमें ड्राइव अपनी शेयर कर सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे अरेंज किया। एनीथिंग वट एवर यू हैव लर्न एज अ एविडेंस कि आपने उसको यूज किया है, आप कर सकते हो। सो आई हैव गिवन अ फीडबैक फॉर्म यहाँ पे। अश्वनी मैम, आप फीडबैक फॉर्म तो लास्ट में दोगे ना जब पूरा कैप्सूल कंप्लीट हो जाएगा? So this feedback form generally I am taking for your attendance also, कि कौन कौन लोग कब कब अटेंडेंस किया है, तो मैं एक ट्रैक बना के रख लूंगी उस चीज का। यस सोमा मैम। मैम ये बोल रही थी कि आपने जैसे बोला ना, कोई भी एक असाइनमेंट हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड वट एवर यू हैव टॉट दिखाना है, सो हाउ कैन वी डू इट इन द नेक्स्ट सेशन, और अभी कैसे करें? आप जैसे एक वर्कशीट बना लीजिए, इस तरह की वर्कशीट हम बनाएंगे। आप लेसन प्लानिंग करेंगे ही नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, आपने एक वर्कशीट बना ली, आपने उसको कैसे यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बताई, या मान लीजिए मैंने चिप बताया, मैंने कोई भी ब्लॉक वाला बताया, कुछ कुछ भी भी डॉक, चीजें, मैम डॉक में कुछ नया क्रिएट करके, या गूगल फॉर्म आज जैसे आपने बनाया कोई एक नया जो भी बनाया? आप, इट्स ऑन योर चॉइस, वट एवर यू हैव लर्न, आपको जो लगता है कि हम हाँ ये चीज यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, आप उसको जैसे यूज करोगे उसी फॉर्म में एक असाइनमेंट बना के इसमें लगा दीजिए। तो आपका मैम असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में डालोगे? मैं पोस्ट कर दूंगी मैम। ओके। मैं आज वो वीडियो मिलेगा मैम से ना, वो वीडियो, क्योंकि 3 वाला वीडियो मैंने नहीं लगाया है, वो वीडियो उसके साथ ये असाइनमेंट और वो सारी चीजें पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, आई होप everybody is filling the feedback form. I have received only 9 responses till now. स्मिता मैम, ये वाला वीडियो भी प्लीज सेंड कीजिएगा। हाँ Smita जरूर ma'am, there मैम। are two हाँ, क्योंकि forms. बीच में मैं लेफ्ट हो गई थी। क्या Smita चीज ma'am, मैम? there are two different forms. क्या you've sent two forms? नहीं नहीं, there. लास्ट वाला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वाज जस्ट टू टेक द लुक ऑफ दैट सेक्शन, जो सेक्शन That I have टीचर मैंने already बताया done. था That वो I वाला have था। already done. ये दूसरा फीडबैक फॉर्म है, टू टेक योर अटेंडेंस I and thought to improve Ashwini ma'am myself will, also. Ashwini ma'am will send another one. हाँ, अलका मैम आप बहुत देर से जुड़ी थी ना? 10 मिनट लेट हो गया था स्मिता। 10 मिनट? हाँ हाँ, 10 ही मिनट, और क्या है। 5 से 6 था मैम। नहीं नहीं, सुमन मैम वो प्रज्ञा मैम के लिए बोल रही थी स्मिता मैम। अच्छा, प्रज्ञा मैम के लिए बोल। यस मैम, मैं ही बीच से निकल, और मेरे साथ दो तीन टीचर और निकल गए थे, सब लोग परेशान था। कोई नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे। कोई नहीं मैम, मुझे लगा अलका मैम के लिए आप कह रही थी कि अलका मैम जुड़ना चाह रही है, नहीं जुड़ रही हैं। मैंने बोला नहीं, अलका आपने मैम। दी से पूछा बट मैंने बोला नहीं, लेकिन हाँ मुझे लेट हो गया था, झपकी आ गई थी मालूम है, अचानक नींद से उठे, कोई धड़ाधड़ नहीं। ज्वाइन किया। अश्वनी मैम, यू कैन क्लोज द रिकॉर्डिंग। मेरी तो कैंसिल हो नहीं रहा है इधर से। हाँ तो क्या दो? थैंक यू सोनाली मैम। Ma'am, Ashwini ma'am will share another form. तुम लिखी ना कि पैसा ज्यादा मांग रहा है, उसकी नौकरी पाई जाएगा।
कितनी देर की दूरी पे है और कितना मांग रहा है? कितना ले रहा है? 221। अभी तो 263 दिया था। मेरा फोन बिल्कुल डिस्चार्ज है। चार्जर ले चलो।